In this video, we are going to see about the spiritual gifts of the Holy Spirit. We all know that people in the world die hard to get the gifts of the Holy Spirit. They consider the ones who are performing and exhibiting gifts as the superb ministers of God. पवित्र आत्मा के आध्यात्मिक उपहार। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में लोग पवित्र आत्मा के उपहार पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे मानते हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं और उपहार प्रदर्शित कर रहे हैं वे भगवान के शानदार मंत्री हैं। In the Old Testament, God used several people like Moses, Joshua, Elijah and Elisha to show the people he is God and none beside him. There you can see the habits of Israelites that once they encountered with God's miracles, they understand that God was in control. They gave due respect to God's servants to whom God performed miracles. At the same time, people paid attention to God and they glorified God. Literally, they feared and obeyed God's commandment. पुराने नियम में परमेश्वर ने लोगों को दिखाने के लिए मूसा, यहोशू, एलीशा और एलिय्याह जैसे कई लोगों का इस्तेमाल किया। वह परमेश्वर है और उसके अलावा कोई नहीं। वहाँ आप इस्राएलियों की आदतों को देख सकते हैं कि एक बार जब उनका सामना परमेश्वर के चमत्कारों से हुआ तो वे समझते हैं कि परमेश्वर का नियंत्रण था। उन्होंने भगवान के सेवकों को उचित सम्मान दिया जिनके माध्यम से भगवान ने एक ही समय में चमत्कार किए। लोगों ने भगवान पर ध्यान दिया, उन्होंने भगवान की महिमा की। वस्तुतः वे भगवान से डरते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। But in contrast, nowadays all the glory and attention given to the performer, not to God. In Old Testament, only very few people are selected and ordained as God's servants. But in New Covenant, whoever is baptized with the Holy Spirit are called to fulfill God's mission. Everyone is God's children and His appointed servants. लेकिन इसके विपरीत आजकल सभी महिमा और ध्यान कलाकार को दिया जाता है, लेकिन भगवान को नहीं। पुराने नियम में केवल कुछ चुनिंदा लोगों को ही भगवान के सेवक नियुक्त किया गया था, लेकिन नई वाचा में जिसने भी पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लिया है उसे परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए बुलाया गया है। हर एक परमेश्वर की संतान और उसके नियुक्त सेवक हैं। So to be a citizen in God's kingdom, one must be saved and need to be baptized with the Holy Spirit. How to receive that? It's given in the description box. You can use it. इसलिए परमेश्वर के राज्य में एक नागरिक होने के लिए किसी को बचाया जाना चाहिए और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। इसे कैसे प्राप्त करें, यह विवरण बॉक्स में दिया गया है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं। Before discussing about the gifts of the Holy Spirit, I would like to say one thing to the viewers. Even if you didn't perform anything like doing miracles, prophecy, and healing, nothing to worry. Because Bible points out that John the Baptist didn't perform any miracles, yet he was considered one of the greatest prophet. Jesus testified about him, I tell you, among those born of women, there is no one greater than John. Yet remember what the scripture said about his spiritual gifts. And many people came to him, they said, though John never performed a miraculous sign, all that John said about this man was true. The greatest prophet, John, didn't perform any miracle at all. Yet he was considered great. So it is important to concentrate on our mission instead running behind popularity, money and miraculous works. पवित्र आत्मा के उपहारों के बारे में चर्चा करने से पहले मैं दर्शकों को एक विचार कहना चाहूँगा। भले ही आपने कोई चमत्कार, भविष्यवाणी या उपचार करने जैसा कुछ नहीं किया हो, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कोई चमत्कार नहीं किया, फिर भी उन्हें सबसे महान भविष्यद्वक्ताओं में से एक माना जाता था। यीशु ने उसके बारे में गवाही दी। मैं तुमसे कहता हूँ कि स्त्रियों से जन्म लेने वालों में यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं है। फिर भी याद रखें कि पवित्र शास्त्र ने उसके आध्यात्मिक उपहारों के बारे में क्या कहा और बहुत से लोग उसके पास आए। उन्होंने कहा, यद्यपि
जॉन ने कभी चमत्कारी चिन्ह नहीं दिखाया। जो कुछ भी जॉन ने इस आदमी के बारे में कहा वो सच था। महान भविष्यवक्ता जॉन ने कोई चमत्कार नहीं किया, फिर भी उन्हें महान माना गया। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम लोकप्रियता, धन और चमत्कारी कार्यों के पीछे भागने के बजाय अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करें। भगवान ने हमें क्या कहा है? Bible also says, many will say on the day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name drive out demons and perform many miracles? But God was not pleased about their work and he chased them out, calling evildoers. So keep this in your mind. Fulfilling God's purpose must be our only desire. बाइबल यह भी कहती है, उस दिन बहुतेरे लोग कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? परंतु परमेश्वर उनके कामों से प्रसन्न नहीं हुआ और उसने दुष्टों को बुलाकर उनका पीछा किया। इसलिए इसे अपने दिमाग में रखें। भगवान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमारी एकमात्र इच्छा होनी चाहिए। Moreover, Paul insists you should not be ignorant about spiritual gifts. You must have a proper knowledge about it, so that all of us must have a balanced view about the spiritual gifts. We should not be too much passionate or ignorant about it. All must have a perfect knowledge about spiritual gifts so that we can use it perfectly. पौल जोर देकर कहते हैं कि आपको आध्यात्मिक उपहारों से अनजान नहीं होना चाहिए। आपको इसके बारे में उचित जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम सभी का आध्यात्मिक उपहारों के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण होना चाहिए। हमें इसके बारे में बहुत अधिक भावुक या अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक उपहारों के बारे में सभी को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम इसका सही उपयोग कर सकें। When a man is baptized with the Holy Spirit, he receives the gift of the Holy Spirit as listed in the scripture. To one there is given through the Spirit the message of wisdom, to another the message of knowledge by means of the same Spirit, to another gifts of healing by that one Spirit, to another miraculous powers, to another prophecy, to another distinguishing between spirits, to another speaking in different kinds of tongues, and to still another the interpretation of tongues. Here Paul listed 9 gifts. Some may include some more as serving, giving and teaching, and may say it is 12. Some others may add further and expand the list. But mainly Paul listed about 9 gifts here. जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेता है तो वो पवित्र शास्त्र में सूचीबद्ध आत्मा के उपहार प्राप्त करता है। किसी को आत्मा के द्वारा ज्ञान का संदेश दिया जाता है, किसी को उसी आत्मा के द्वारा ज्ञान का संदेश दिया जाता है, उस एक आत्मा के द्वारा चंगाई के अन्य वरदानों को, किसी अन्य को चमत्कारी शक्तियाँ, किसी अन्य को भविष्यवाणी, किसी अन्य को आत्माओं, दूसरे के लिए विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अभी भी दूसरे को जीव की व्याख्या। यहाँ पौलुस ने 9 उपहारों को सूचीबद्ध किया। कुछ में सेवा देने और पढ़ाने के रूप में कुछ और शामिल हो सकते हैं और कह सकते हैं यह 12 है। कुछ अन्य आगे जोड़ सकते हैं और सूची का विस्तार कर सकते हैं, परंतु मुख्यतः पौलुस ने यहाँ लगभग 9 उपहारों को सूचीबद्ध किया। The gifts are given by the Holy Spirit according to His will. No one can adamant in getting any gifts out of the will of the Holy Spirit. So it is wrong. Somebody may say, ask for healing, prophecy or miraculous works. But you must understand, Holy Spirit is the master. According to He distributes the gifts to everyone. पवित्र आत्मा द्वारा उनकी इच्छा के अनुसार उपहार दिए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा की इच्छा से कोई उपहार प्राप्त करने पर अडिग नहीं हो सकता। तो यह गलत है। कोई व्यक्ति चमत्कार, भविष्यवाणी या उपचार के उपहार मांगने पर जोर दे सकता है, लेकिन आपको समझना चाहिए कि केवल पवित्र आत्मा ही गुरु है। वो अपनी इच्छा के अनुसार सभी को उपहार बांटते हैं। The gifts are for common good, not to glorify the people who possess it. All the people are given at least one gift. None have possessed all the gifts of the Holy Spirit as a whole. Gifts are being given for the goodness of the church, not for any particular person's personal use.
We have to use it for evangelizing and expansion of the God's ministry. उपहार आम अच्छे के लिए है। उन लोगों का महिमा मंडन नहीं करना जिनके पास यह है। सभी लोगों को कम से कम एक उपहार दिया जाता है और किसी के पास समग्र रूप से पवित्र आत्मा के सभी उपहार नहीं होते हैं। उपहार चर्च की भलाई के लिए दिए जाते हैं, न कि किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत उपयोग के लिए। हमें इसका उपयोग सुसमाचार प्रचार और परमेश्वर की सेवकाई के विस्तार के लिए करना है। As Paul explained, not all got all the gifts. Our body has organs, same way each person has been given a different gifts. There is no difference. We should not think some gifts are special and rest are worthless. How the body need all the organs for its proper functioning, the same way all the gifted persons should come together, work together so that we can build God's kingdom. There is no big or small gifts. All the gifts are important and needed. जैसा कि पौल ने समझाया, सभी को सभी उपहार नहीं मिले। जिस प्रकार शरीर के अंग होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को भिन्न भिन्न उपहार दिए गए हैं। इसमें कोई फर्क नहीं है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कुछ उपहार विशेष हैं और बाकी बेकार हैं। शरीर को अपने उचित कामकाज के लिए सभी अंगों की आवश्यकता कैसे होती है। सभी उपहार लोगों को एक साथ आना चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए ताकि हम भगवान के राज्य का निर्माण कर सकें। कोई बड़ा या छोटा उपहार नहीं है। सभी उपहार महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं। If you are an anointed one, know your gift. Ask the Lord to reveal the importance of your gift and get the grace to utilize it properly. Keep these important things in your mind. The first one is, all the anointed persons are given at least one gift. यदि आप एक अभिषिक्त हैं, तो अपने उपहार को जाने, भगवान से अपने उपहार के महत्व को प्रकट करने के लिए कहें और इसे ठीक से उपयोग करने की कृपा प्राप्त करें। इन महत्वपूर्ण बातों को अपने दिमाग में रखें। 1. सभी अभिषिक्त व्यक्तियों को कम से कम एक उपहार दिया जाता है। Second, only Holy Spirit decides and distributes gifts. No one can choose to get any gifts. Third, it is not because of our talent or special anointing we get gifts. It's because of pure God's grace. 2. केवल पवित्र आत्मा ही उपहारों का निर्णय और वितरण करता है। कोई भी इसे प्राप्त करने का चुनाव नहीं कर सकता है। 3. ऐसा नहीं है कि हमारी प्रतिभा या विशेष अभिषेक हमें उपहार मिलते हैं। यह केवल भगवान की शुद्ध कृपा है। All the gifted people should work together to glorify God and expand God's ministry as He like and leads. No gifted people should use this God-given gifts to spread their own popularity or gain money and attention. Sixth is, all the gifts are of equal and have same weightage. Now, if you don't receive the Holy Spirit, the way to receive it has given in the description box. Receive the Spirit and the gifts and be useful to the God's kingdom. May God bless you till we meet again. 4. सभी प्रतिभाशाली लोगों को परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए और परमेश्वर की सेवकाई का विस्तार करना चाहिए जैसे वो पसंद करता है और नेतृत्व करता है। 5. किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति को इस ईश्वर प्रदत्त उपहार का उपयोग अपनी लोकप्रियता फैलाने या धन और ध्यान प्राप्त करने के लिए नहीं करना चाहिए। 6. सभी उपहार समान हैं और उनका महत्व समान है। अब तक यदि आपने पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं किया है, तो आत्मा को प्राप्त करने का तरीका विवरण बॉक्स में दिया गया है। आत्मा और उपहार प्राप्त करें और भगवान के राज्य के लिए उपयोगी बने। भगवान आपको तब तक आशीर्वाद दे जब तक हम फिर से न मिलें।